कैसे हो मेरे पढ़ाकू? ठीक, बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ पढ़ाकू पढ़ाकू? पढ़ाई कर रहे हो ना? बढ़िया। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो थियरी आप लोगों ने समझ ली होगी, उसका वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 4.11। एग्जाम्पल 4.11 क्वेश्चन देख के आप लोग खुश हो गए होंगे, है ना? छोटा सा एग्जाम्पल होगा, देख के ही लग रहा है। चलो ठीक, देखते हैं कैसा है न्यूमेरिकल। 100 टन क्लोजली वाउंड सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। एक सर्कुलर कोयल कंसीडर कर लेते हैं। लेट मी कंसीडर वन सर्कुलर कोयल। And consider total 100 tons. Number of tons are given. N is equal to 100 tons. Right? Closely wound circular coil of radius 10 centimeter. R दे दिया गया है. R that is 10 centimeter. So 10 centimeter is nothing but 10 into 10 raised to minus 2 meter. That is nothing but 10 raised to minus 1 meter. Right? फर्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही होगी, करंट की वजह से जो भी फील्ड मिलेगी। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? हियर एट द सेंटर वी हैव टू फाइंड फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। आर्बिटरीली आई एम चूजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट टू बी इन दिस डायरेक्शन। मतलब ये कुछ ऐसी कॉइल है, ध्यान से देखो, ये हो गई कॉइल, राइट, सर्कुलर कॉइल, एंड दिस इज द सेंटर. And at the center of the coil we want to find magnetic field. Okay, now this direction I have considered, मतलब current कुछ ऐसे flow है. When current is flowing in this direction, if we want the direction of magnetic field, then we can find the direction of magnetic field using right hand thumb rule. Just you have to curl your fingers in the direction of electric current and thumb will give you the direction of magnetic field. अभी मैंने जो डायरेक्शन कंसिडर की हुई है उसके अकॉर्डिंग कुछ ये रहेगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। अगर डायरेक्शन चेंज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, राइट? तो हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड बी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r. यस और नो? दिस फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. व्हाट इज म्यू नॉट? 4 pi into 10 raised to minus 7 into number of turns 100, current that is 3.2 ampere, and 2 into R that is 10 raised to minus 1. Okay. 2 into 2 4, 2 pi इंटू 3.2, 10 raised to minus 1 ऊपर जाएगा 10 raised to 1, 100 इंटू 10 1000, 10 raised to minus 7 इंटू 1000, 10 raised to minus 4. चलो 2 इंटू 3.14 इंटू 3.2, 2 इंटू 3.14 इंटू 3.2 करेंगे, हमें क्या मिलेगा? So numerically if you solve you will get answer 2 into 10 raised to minus 3 Tesla. So magnetic field at the center of coil, that is 2 into 10 raised to minus 3 Tesla due to this current 3.2 ampere and total number of turns are 100. So magnetic field at the center of circular coil, that is 2 into 10 raised to minus 3 Tesla. चलो एक केस हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल? क्या फाइंड करने को बोले? मैग्नेटिक मोमेंट। याद करो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज m vector is equal to NIA vector. In last lecture we have studied the formula of magnetic moment. M vector is equal to NIA vector.
It means direction of magnetic moment is in the direction of area vector. Yes or no? So for this, tell me what will be the direction of area vector? Area vector we can find using right hand thumb rule when we have current carrying wire. So here current is flowing in this direction. So area vector we have to consider perpendicular to the plane of this coil. It means area vector will be in this direction. So magnetic moment and magnetic field for this situation are in the same direction. M vector, that is NIA vector. If I want to find magnitude of magnetic moment, then that is equal to NIA, number of turns into electric current into area. Number of turns 100, electric current that is 3.2, and area of circular coil. What is the formula of area of circular coil? That is pi r square. So pi r square 3.2 into 100, that is nothing but 320. Yes or no? Into pi 3.14 into r square. R that is 10 raised to minus 1 square. 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 into 320, that is 3.2 into 3.14. Then value of magnetic moment 3.2 into 3.14. 3.2 into 3.14, that is nothing but 10 ampere meter square. Unit of magnetic moment, that is ampere meter square. So magnetic moment that is 10 ampere meter square. चलो केस 2 भी सॉल्व हो चुका है. आ जाते हैं केस 3 पे. केस 3 पे जाएं उसके पहले उन लोगों ने कुछ कंडीशन दी हुई है. क्या कंडीशन? द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन and is free to rotate about a horizontal axis which coincides with its diameter. कैसी coil दी हुई है? The coil is placed in a vertical plane. ये हो गया vertical plane, right? ये हो गया horizontal plane. coil किस में रखी हुई है? vertical plane में. Okay? A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. This is the coil, and what is the direction of axis of this coil? This is the direction of axis of coil. आइए ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा. Here the coil is placed in vertical plane and this is the axis. यही बनेगी axis. Yes or no? And a uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the field. मतलब magnetic field की डायरेक्शन किस तरफ है? इसी तरफ. This is the direction of magnetic field. The coil rotates through an angle of 90 degree under the influence of the magnetic field. Magnetic field की वजह से क्या होता है? coil rotate हो रही है. When we have current carrying coil, due to the existence of magnetic field, what will happen? Whenever current carrying loop is placed in external magnetic field, then torque will act. And suppose due to that this coil rotates through an angle of 90 degree. मतलब मान ले ये सिचुएशन, कॉइल कुछ ऐसे थी, ये सुनो, और कॉइल ऐसे घूमी. कितना घूमी? 90 डिग्री. ध्यान से देख, 90 डिग्री. ये सुनो. सो दिस विल बी द सिचुएशन. क्या समझ में आया? कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री घूम जाएगी. मतलब मान ले कि यहाँ से वो 90 डिग्री घूमी ऐसे. तो अभी मैं दिखाता हूँ वो सिचुएशन. क्या बोला? द कोयल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो अब ये 90 डिग्री घुमा दें तो अब सिचुएशन कैसी हो जाएगी? कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाएगी. ये ओल शेप में है, मतलब ऐसी खड़ी हुई, फिर घूम गई 90 डिग्री. तो अब इसकी एक्सिस कुछ इस तरफ होगी. यस और नो?
और मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, बी वेक्टर, यस और क्या, ठीक, ओके। मतलब ये कुछ घूम गई है 90 डिग्री, कितना घूमी, 90 डिग्री। तो अब इसका एरिया वेक्टर कौन सी तरफ होगा, अब एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, कितना एंगल बना इसके बीच में, 90 डिग्री। अभी ये एरिया वेक्टर किस तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल क्या है, 0। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क्स ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। चलो इनिशियली पहले मुझे बता, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सुन, टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनिशियली। So this can be written as tau is equal to mb sin theta. Whenever we remove cross, then sin. So magnitude of torque, that is mb sin theta. Angle between m vector and b vector. Area vector is nothing but m vector. Magnetic moment is in the direction of area vector. So direction of m vector is same as the direction of area vector. वैल्यू सेम नहीं होती, डायरेक्शन सेम होती है। क्या सेम होती है, डायरेक्शन। तो हम ऐसा लिखते हैं, यस और हियर मैग्नेटिक मोमेंट वी विल गेट इन दिस डायरेक्शन, क्या, ठीक। सो हियर इनिशियली थीटा आई इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली थीटा एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाइनली एंगल क्या बना है, एम और बी के बीच में 90 डिग्री, क्या, ठीक। अब बता टॉर्क कितना मिलेगा, इनिशियल टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, 0। सो 0 इंटू एनीथिंग, एम बी इंटू 0 दैट इज 0। सो इनिशियल टॉर्क दैट इज 0, राइट। चलो टाउ तो मिल गया, अब क्या निकालना है, फाइनल टॉर्क। फाइनल टॉर्क निकालना हो तो क्या करेंगे, tau f is equal to mb sin 90. What is the value of sin 90? That is 1. So this is nothing but mb. चलो m कितना मिला हुआ है हमें, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 टेस्ला। इसमें मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू क्या दी है, 2 टेस्ला। आगे वाली मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करनी नहीं है, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेंगे 2 टेस्ला। तो क्या बनेगी, 2। सो 2 इंटू 10 दैट इज 20। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, दैट इज न्यूटन मीटर। सो टाउ एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर। सो दिस वे वी कैन गेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टॉर्क्स on the coil in the initial and final position। चलो 3 केस हमने सॉल्व कर लिए हैं, A B C। चलो D पे आ जाते हैं, क्या पूछे हमसे, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज़ रोटेटेड बाय 90 डिग्री। एंगुलर स्पीड कितनी रही रोटेट करने में। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज गिवन दैट इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर। रोटेशनल मोशन कंसिडर करना है, स्टैंडर्ड 11 वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। कहाँ पे करें, चलो पहले स्पेस बना लेते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो क्या निकालना है हमें, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड निकालें उससे पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या बना था, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, राइट। टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। नाउ हियर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क व्हेन वी कंसीडर रोटेशनल मोशन। याद करो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो। बट व्हेन वी कंसीडर रोटेशनल मोशन एट द टाइम टॉर्क इज एनालॉगस टू फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज एनालॉगस टू लीनियर एक्सेलरेशन। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। दिस रिलेशन ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 11। So this torque tau can be written as I alpha is equal to mb sin theta, because we want to find angular speed। तो angular speed लानी पड़ेगी।
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? याद करो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt, यस ऑन। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? एंगुलर वेलोसिटी इज एनालोगस टू लीनियर वेलोसिटी, सो d⍵/dt, यस ऑन। सो हियर d⍵/dt is equal to mb sin theta. You can see here we have derivative of angular velocity with respect to time, और राइट साइड पे देखे जाए तो क्या दिया हुआ है? थीटा। टाइम तो है नहीं, सो वी शुड अप्लाई चेन रूल। सो इफ यू अप्लाई चेन रूल देन दिस d⍵/dt कैन बी रिटन एज d⍵/d इंटू d⍵/dt, ये सर। क्या d⍵/dt को ऐसे लिख सकते हैं? d⍵/d इंटू d⍵/dt। याद कर d⍵/dt तो क्या था? d⍵/dt एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज नथिंग बट ओमेगा। सो d⍵/dt दैट इज नथिंग बट ओमेगा, सो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा d⍵/d, राइट। चलो, तो हमने अब टाइम को रिमूव कर दिया, d⍵/dt किस में कन्वर्ट हो गया? ओमेगा d⍵/d। तो राइट साइड क्या दिया हुआ है? थीटा। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन राइट I इंटू, इंस्टेड ऑफ d⍵/dt व्हाट कैन वी राइट? ओमेगा d⍵/d इज इक्वल टू mb sin थीटा, करेक्ट। चलो, ये क्या बनेगा? I⍵d⍵ इज इक्वल टू mb sin थीटा d थीटा, क्या ठीक? बट वी आर इंटरेस्टेड इन एंगुलर स्पीड, तो यहाँ से डेरिवेटिव हटाना होगा। सो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ I⍵d⍵ इज इक्वल टू mb इंटीग्रेशन ऑफ mb sin थीटा d थीटा। This is the integration with respect to omega, and moment of inertia that is given to us 0.1 kg/m² and that is constant. तो constant को तो बाहर निकाल देंगे, तो क्या बनेगा? I इंटीग्रेशन ओमेगा d⍵, mb इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा, राइट। चलो, अब क्या बोल रहा है? What is the angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 डिग्री? मतलब 0 डिग्री से कितना रोटेट किया? 90 डिग्री। मतलब थीटा की लिमिट क्या बनेगी? 0 to π/2, 90 डिग्री दैट इज π/2। When angle theta is equal to 0 at the time angular speed that is 0, कोई स्पीड नहीं होगी, 0। And when it has rotated through angle 90 degree at the time, let me take speed, angular speed that is omega, correct? So this can be written as I इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा d⍵, पावर में एक बढ़ेगा, पावर से डिवाइड, ω²/2 0 to omega mb as it is. What is the integration of sin theta? That is minus cos theta, minus cos theta 0 to π/2, क्या ठीक? So this can be written as I/2 first limit, that is ω² minus 0. So that can be written as I⍵²/2 is equal to minus mb, माइनस बाहर निकाल लिया, माइनस mb फर्स्ट लिमिट cos π/2 माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो, I⍵²/2 एज इट इज माइनस mb, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/2? cos 90 दैट इज 0 minus 1, cos 0 that is 1, minus minus plus, therefore ω² is equal to minus minus plus mb into 2 mb by I,
सो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू एम, क्या मिला था मैग्नेटिक मोमेंट याद करो 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है 2 टेस्ला अपॉन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, करंट मत कंसीडर करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल दैट इज 0.1। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आई की जगह 3.2 एम्पियर डाल देंगे तो गलती हो जाएगी। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 2 दैट इज 40 अपॉन 0.1 दैट इज 400। इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 20 सेकंड इनवर्स, राइट, और यू कैन राइट 20 रेडियन पर सेकेंड। सो एंगुलर स्पीड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 400, रूट निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 20 सेकंड इनवर्स। So this way we can find angular speed acquired by the coil when it is rotated by 90 degree। सिंपल सा एग्जाम्पल है, 4 केस दिए हुए हैं, आगे के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आगे के कंसेप्ट क्लियर हैं तो इजीली आप लोग ऐसे एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल 4.11 हमने करवा दिया है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल 4.12 इन होमवर्क। क्या होमवर्क में दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 4.12। तो एग्जाम्पल 4.12 आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक थियरी लेनी है वो ले लेंगे। आई एम स्टॉपिंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।